Hello my dear students, this is Vidhi Sharma welcomes you in my English grammar class, and today's topic is phrase and clause. Okay, we will practice phrase and clause, and yeah, I will take a practice set to complete our practice and to solve your doubts. Okay, okay students. So then this is our topic, phrase and clause. Okay, do you know what are phrase and clause? These are two topics, phrase and clause. So do you know what is phrase and what is clause? And what is the similarity between phrase and clause, and what is the difference between them? Do you know? Yeah, I will tell you. I will only recapitulate these things. Otherwise, in my previous videos, I told you about everything. So, I think you have to watch this video to clear everything. Okay? In this video, I am just only recapitulating all the things related to phrase and clause for practice. Okay, students? Phrase and clause both are groups of words. Okay, both are groups of words. Okay, so this is the similarity between them. And what is the difference between phrase and clause? You know, phrase, this is the difference. Phrase, a group of words without subject and verb. Okay, the sentence, you know, the group of words that have no subject and no verb is called phrase. And in the same way, just like that, a group of words with subject and verb. Okay, a group of words with subject, a group of words with subject and verb. Okay, you know, one thing is more like that, groups of word. एक और चीज होती है groups of word. Do you know what is the groups of word? Exactly, this is sentence. Okay, so in sentence this is also a group of words, okay, with subject, verb and object. Okay students, and it has complete meaning, it gives complete meaning. But phrase can't give complete meaning, complete sense. Okay, phrase complete sense नहीं दे पाती है, and clause complete sense दे पाता है because it's with subject and verb. And sentence भी complete sense दे पाता है. Okay, in a sentence there can be many phrases and many verbs. So sentence बड़ा होता है, उसमें कई सारे clause भी हो सकते हैं and कई सारे phrase भी हो सकते हैं. Okay students, so that we will know with that, हम यहाँ लिखते हैं phrase and clause और उसको डिफरेंस, उसके डिफरेंसेस यहाँ पर देखेंगे. phrase, clause. Okay, this is phrase and this is clause. हमें एक और चीज ले लेते हैं साथ में, sentence. Okay, sentence हमने लिया है, but
स्पेशली आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड अबाउट फ्रेज एंड क्लॉज. सेंटेंस भी हमने साथ में ले लिया है बिकॉज आई जस्ट वांट टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन देम एंड द सिमिलरिटी ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स. तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है सेंटेंस और उसका वो ग्रुप किस तरीके का ग्रुप्स ऑफ वर्ड. ओके, यू नो फ्रेज, it is a group of words. Okay, and this is also a group of words, and this is also a group of words. So all these topics, all these phrase, clause and sentence are the groups of words. Okay students, and but phrase, what type of a group of word is that? The second point, no subject verb, no subject and verb. Okay, and this is subject and verb combination. Okay students, and this is also subject, verb and object combination. Okay, and then the third point about them, it doesn't give complete meaning. It doesn't give complete meaning. Okay, because it has no subject and verb, so it never gave complete meaning. And it can give complete sense. Okay, and it also can give complete sense. It means sentence. Okay students, so this is the difference between, this is the similarity that all these three are groups of words. Okay, but the difference is that phrase, no subject and verb, and clause, subject and verb combination, and in sentence, subject, verb and object combination. Okay, and the third, like that phrase, it doesn't give complete meaning, and clause, it gives complete sense, and sentence can also give complete sense. Okay, are you getting? Okay, then अब हम इसके डिफरेंसेस कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से बताएंगे. Then I'm just going to write some examples to make you understand about them in proper way. Okay students, like
I like the cake with cherries. And second, I like the cake which has cherries. Okay? And third, the book is lying on the table. Fourth, his brother helped me, but I couldn't score good marks. Fifth, when I came here, I saw him and I greeted. Okay? And six, he was doing the work slowly. And carefully. And seventh, I will wait here until he completes his assignment. Okay? Are you looking all this? So you have to identify phrase and clause. आपको phrase and clause identify करनी है. Okay? You know, first, I like cake. As I told you, the ये क्या है? These are complete sentence. What are these? ये सारे sentence हैं. Okay? So the sentence is a group of words. तो इसमें बहुत सारी words हैं. It means ये सारे sentence और complete sentence भी दे रहे हैं सभी. Okay? But a sentence can contain many phrase and many clause. So you have to identify that which group of words is phrase and which group of words is what is clause. Okay? So you have to identify only. Okay? Look, और मैंने कहा था if the groups of words contain subject and verb. जिसमें subject and verb होता है वो क्या होता है? Clause. और जिसमें subject and verb नहीं होता वो क्या होता है? Phrase. Okay? Like I. What is I? I is subject. Like is verb. And this is object. अब आपको देखना है ये क्या हो गया पूरा? Complete क्या हो गया? What is that? Subject and verb मिल गया तो then it is clause. Okay? But you have to identify इसमें phrase भी है कि नहीं. तो then this is cake with cherries. Okay? अगर मैं आपसे केवल इतना ही बोलूं cake with cherries, तो then ये complete sense दे रहा है या नहीं दे रहा?
इज इट गिविंग कंप्लीट सेंस? आई थिंक नो, क्योंकि ये केवल इतना पार्ट, द केक विथ चेरीज। तो आप पूछोगे क्या केक विथ चेरीज, क्या क्या है केक विथ चेरीज? बनाया है, खाया है, या क्या किया है? ओके, तो देन इट डजंट गिव, it is not giving complete sense, so this group of words is phrase. क्या है ये? phrase. Okay students, and then second, I like. So you are looking that this is subject, this is verb, and so this is a complete object. Okay, so now you have to identify only phrase, कि यहाँ पे phrase है भी कि नहीं. So I think इसमें phrase is not giving here, यहाँ phrase नहीं है, but यहाँ this which has cherries. Okay, ये क्या है? Dependent clause. Clause कौन सा? Dependent. And this is main clause. I like the cake. ये क्या है? Main clause. Okay, this is main clause, and this which has cherries, ये क्या है? Dependent clause. अगर मैं इतना बोलूं which has cherries, तो आप बोलोगे क्या, किसके पास है cherries? Which has cherries, किसमें है cherries? Okay, bread में या milk में, किसमें? तो then it has not complete sense. Okay, तो ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, कंप्लीट सेंस तो है बिकॉज यू नो वर्ब भी है इसमें, एंड विच, दैट दिस इज वर्किंग हियर एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का काम कर रहा है विच. ओके, तो देन इट हैज एवरीथिंग, बट ये पूरा नहीं है, इसके लिए एक सपोर्ट की जरूरत है. तो देन दिस इज द सपोर्ट. यहाँ एक डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है और यहाँ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की भी नीड है, बिकॉज जब इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तभी हम इसका मीनिंग कंप्लीट कर पाएंगे. सो विच इज गिवन हियर, विच इज वर्किंग इन दिस सेंटेंस लाइक सब्जेक्ट. तो देन सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तो इट हैज क्लॉज. क्लॉज वो है, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा है. सो जस्ट आई टोल्ड यू, ये डिपेंडेंट क्लॉज है एंड दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके, सो दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. क्या है ये? इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके, सो लुक टुवर्ड्स द नेक्स्ट. अब हम दूसरे देखते हैं. द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. सो दिस इज सब्जेक्ट. द बुक क्या है? द बुक, दिस इज सब्जेक्ट. इज वर्ब, and this is helping verb, and this is main verb. Okay, is lying on the table. So you know subject भी है, verb भी है, तो ये क्या है? clause है. complete क्या है? clause. but इसमें phrase भी है कि नहीं? so now you are looking on the table. ये complete sense नहीं दे रहा है. on the table. okay, तो ये क्या है? ये है phrase. बिकॉज अगर मैं इतना बोलूं ऑन द टेबल, तो आप बोलोगे क्या है ऑन द टेबल? बुक है, पेंसिल है, एनीथिंग, क्या है? तो देन इट इज नॉट गिविंग कंप्लीट सेंस. सो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज. ये क्या है? फ्रेज. ओके स्टूडेंट्स, एंड देन लुक, हिज brother helped me, but I couldn't score good marks. His brother, this is subject. His brother, it means his brother is subject, help is verb. तो आपका ये क्या हो गया? complete clause हो गया. subject भी मिल रहा है, verb भी मिल रही है, तो then ये क्या हो गया? complete clause. अब इसमें आपको देखना है कि आपका इसमें phrase भी है कि नहीं. but I couldn't score good marks, you know, इसमें बताइए फ्रेज है कि नहीं है? you know, ये क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, इट मीन्स ये क्या है? क्लॉज. अब दूसरी तरफ भी देखिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है,
ओके, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब। तो एक सेंटेंस में कितने क्लॉज हो गए? टू क्लॉज हो गए। ओके स्टूडेंट्स, देन यहाँ कितने क्लॉज है? टू क्लॉजेज हैं। तो यही तो एक यही तो एक स्पेशलिटी है इंग्लिश लैंग्वेज की, कि हम एक से ज्यादा चीजें भी हम वहाँ एक ही सेंटेंस में फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इन दिस वन सेंटेंस यू आर गेटिंग टू क्लॉजेज, और समटाइम्स यू आर गेटिंग टू फ्रेजेस। ओके, मोर देन टू फ्रेजेस कैन यू गेट। और यहाँ आपको दो क्लॉज मिल रहे हैं। हिज ब्रदर हेल्प्ड मी and I couldn't score good marks. So this is also and this is. I couldn't score good marks. His brother helped me, and both are independent clause. कौन से clause हैं दोनों? Independent. Okay? इसमें कोई भी clause dependent नहीं है. Okay students? And look, look to the next. When I came here, you know, this is subject and came, it's verb. Okay, so then this is, ये क्या हो गया? Clause. And look towards the next. यहाँ पर एक ही सेंटेंस में दो चीजें आपको मिलेंगी. Are you getting? This is subject, this is verb and this is object. तो ये आपका दूसरा क्लॉज हो गया, ये फर्स्ट क्लॉज हो गया, दिस इज सेकेंड। एंड यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो देन दिस इज थर्ड। एक ही सेंटेंस में कितने क्लॉजेस हैं? 3. When I came here, I saw him and I greeted. तो are you getting? कितने कितने क्लॉज मिल रहे हैं आपको? This is 1 and this is 2 and this is 3. कितने क्लॉज मिल रहे हैं? 3 क्लॉजेस हैं। अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि विच क्लॉज इज डिपेंडेंट एंड विच इज इंडिपेंडेंट, और क्या इसमें कोई फ्रेज भी है या नहीं। सो आर यू गेटिंग? दीज आर आई सॉ हिम, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है, एंड आई ग्रीटेड, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो दीज आर इंडिपेंडेंट। कौन से क्लॉज है ये? इंडिपेंडेंट। बट ये देखिए यहाँ पर, लुक, यहाँ वेल लगा हुआ है। When I came here, जब मैं वहां आया, तो जब मैं वहां आया तब क्या हुआ? It is not giving complete sense. ये complete sense नहीं दे रहा है, because it contains subject and verb, but ये phrase नहीं है। यहाँ पर subject and verb है, phrase नहीं है, but complete sense नहीं दे रहा है। It means ये dependent clause है। So which type of clause is this? When I came here, जब मैं वहां आया, तो जब मैं वहां आया तो क्या हुआ? Means मैंने उसे देखा, उससे मिला। तो ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज, एंड बोथ दीज आर इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, आर यू गेटिंग? ये क्या है? डिपेंडेंट, और ये दोनों कौन से हैं? इंडिपेंडेंट। ओके स्टूडेंट्स, एंड लुक नेक्स्ट, ही वाज डूइंग द वर्क slowly and carefully. So you are looking that this is subject, this is helping verb and this is main verb. तो ये क्या हो गया? Clause. आपको clause तो मिल ही गया यहाँ. Okay? And the verb, ये क्या है? Object. तो then ये क्या हो गया? Sentence. Complete क्या है? Sentence. But look, slowly and carefully, ये आपको complete sense दे रहा है? धीमे और केयरफुली। आपने वो काम कैसे किया? धीमे और केयरफुली। ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इट इज नॉट गिविंग कंप्लीट सेंस। बट यहाँ किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की। तो देन ये क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज। व्हाट इज दिस? फ्रेज। दिस इज फ्रेज। ओके स्टूडेंट्स, एंड यू नो इस सेंटेंस में भी देखिए, यहाँ पर भी आपको एक फ्रेज मिलेगा। आई फॉरगॉट टू मेक यू अंडरस्टैंड, स्कोर गुड मार्क्स। ये भी क्या है? फ्रेज है ये भी। इट इज नॉट गिविंग कंप्लीट सेंस। ये यहाँ सब्जेक्ट एंड वर्ब तो है, बट ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखिए, स्कोर गुड मार्क्स। अगर मैं केवल इतना बोलूं स्कोर गुड मार्क्स, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट इट इज नॉट गिविंग कंप्लीट सेंस। तो यहाँ ये क्या है? फ्रेज। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रेज। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, लुक टुवर्ड्स द नेक्स्ट।
I will wait here until he completes his assignment. So you are looking that this is subject, this is helping verb, and this is main verb. तो दोनों verb हुई. And I will wait here until, ये क्या हो गया, एक क्लॉज मिल गया, पूरा एक क्लॉज मिल गया. ही, ये भी सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये भी क्या है, एक क्लॉज. एक ही सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं, टू क्लॉजेज हैं. ओके, सो देन ये सारी आपको मैंने आपको बताया कि आपका कौन सा क्लॉज है और कौन सी फ्रेज है. तो इन दिस वे यू विल गेट फ्रॉम योर सेंटेंस. आपके सेंटेंस में से इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे, यू नो, द सेंटेंस विच कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट क्लॉज. और a group of word that is not giving complete sense and it has no subject and verb, then it will be phrase. Okay, okay. And then अब मैं आपको इसके टाइप्स बताऊंगी. अभी तो मैंने आपको बताया कि फ्रेज एंड क्लॉज होते क्या है और उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है. अब मैं आपको फ्रेज एंड क्लॉज दोनों के ही टाइप्स बताने वाली हूँ. उनको टाइप्स को आप कैसे देखेंगे, यहां में फ्रेज और यहां क्लॉज. ओके, आई एम जस्ट डिफाइनिंग द टाइप्स. इट हैज मेनली टाइप्स, इसके कितने होते हैं, 5 मेनली. फर्स्ट, नाउन. सेकंड, adjective. Third, adverb. Fourth, verb. And fifth, preposition. Okay, and like that clause के भी 3 parts होते हैं. First, noun clause. Second, adjective clause. And third, adverb clause. Okay, so these are the types. Mainly ये 5 होते हैं, but इसमें participle phrase भी जोड़ देते हैं कभी कभी. 5 कौन से वाले हैं जो अलग से हम इसमें एडिशनल होते हैं, बट मेनली ये 5 टाइप्स के होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउन क्लॉज में होता है द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज इंडिकेटिंग, दैट इज वर्किंग हियर as a subject and object of a sentence, then it is called noun phrase. A group of words, okay, like an old man with a basket, an old man. 3, and with a basket, it's a 6 words. कितने words हैं ये, 6, and it's a group of word. Okay, group of words, then it is working in a sentence as an object or subject, so then it will be noun clause. And adjective clause क्या होता है, the groups of word that is indicating two words, subject and noun and pronoun, that is saying something about noun and pronoun, is called that group of word is called adjective. जो एक एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में ग्रुप ऑफ वर्ड जब कुछ बताता है, देन इट विल बी एडजेक्टिव फ्रेज. ओके, एंड एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब सबके बारे में बताए. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक से ज्यादा वर्ड्स हों जिसमें, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन के बारे में, प्रोनाउन के एंड एडजेक्टिव के बारे में भी बताए, देन इट इज एडवर्ब फ्रेज. ओके, एंड वर्ब फ्रेज क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब.
ओके, जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है, मेन वर्ब भी आ जाती है, जैसे विल हैव बीन प्लेइंग, है ना, एंड शैल हैव गोन एंड विल बी डूइंग, ओके, लाइक दैट. एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज, a group of words that contains at least one preposition and the words these are attached with that preposition, and without this preposition the complete sense is not given here. वहाँ preposition से जुड़े हुए जितने भी words होते हैं वो preposition से अलग नहीं हो सकते, और एक सेंटेंस में वो साथ ही यूज हो रहे हैं और विदाउट प्रीपोजिशन उनका सेंस भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, देन दैट ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज. और कभी कभी कंपाउंड प्रीपोजिशंस भी उसमें आ जाते हैं, जैसे इन स्पाइट ऑफ, नॉट विद स्टैंडिंग एंड लाइक दैट. ओके, सो हम इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं. काफी मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पर देने वाली हूँ. I love my two beautiful daughters. यहां से लिखने वाली हूं मैं. And second, the woman near the window. The woman near the window shouted loudly. Third, both the students are very friendly. Fourth, the kids are afraid of dark. And fifth, he behaved very well. And sixth, he will be working very carefully. ओके, अब यहाँ क्लॉज के लिए भी मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिख लेती हूँ एग्जाम्पल के रूप में. फर्स्ट, कैथी थिंक्स that she is pretty. Second,
Okay, students. So these are the classification of phrase and clause. फर्स्ट आपको यहाँ पर केवल फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है. ओके, मैंने यहाँ दोनों अलग अलग लिखे हैं, बट आपको इसमें केवल फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है ताकि आप पूरा उसे समझ सको कि कौन सा फ्रेज है, कैसा है. एंड इसमें केवल आपको क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है. ओके, वैसे तो आपको दिख ही रहा है, देन दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, तो ये आपका पूरा क्लॉज हो ही गया. दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब. A sentence that contains subject and verb both, it's called clause. तो आपका clause तो हो ही गया, but you need not to identify clause. यहाँ पर आपको clause identify नहीं करने हैं, आपको केवल phrase की तरफ concentrate करना है. Okay, as we're looking, I love my two beautiful sisters, two beautiful daughters. I love my two beautiful daughters. So you are looking, subject है, verb है, and then ये objective. My two beautiful daughters. ये पूरा किसका काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का. ओके, दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इज वर्किंग हियर एज एन ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? आई टोल्ड यू, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन. नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. ओके, नाउन किसका काम करता है? सब्जेक्ट का भी करता है नाउन, और ऑब्जेक्ट का भी करता है. देन ये नाउन है और नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. इट्स ऑब्जेक्ट. तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट जो वर्क कर रहा है, जो ये ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? नाउन. तो देन दिस इज, आपको पता चला कौन सा नाउन है, ये कौन सा फ्रेज फ्रेज है? इट्स नाउन फ्रेज. कौन सा है? नाउन फ्रेज. ओके स्टूडेंट्स, एंड लुक नेक्स्ट, द वुमेन नियर द विंडो shouted loudly. So you are looking that ये complete the woman near window, ये पूरा बता रहा है वो औरत जो विंडो के पास खड़ी है. देन ये पूरा सेंस वो किसका आ रहा है? सब्जेक्ट का. ये वर्ब है, देखो वर्ब. एंड ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बट ये एडवर्ब है. बट यहाँ सब्जेक्ट एंड वर्ब है, तो देन ये तो आपका क्लॉज तो पूरा ही हुआ, बट यू आर लुकिंग दैट दिस कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड इज वर्किंग हियर लाइक सब्जेक्ट. किसकी तरह काम कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह. ओके, द वुमेन नियर विंडो, ये सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है. और सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट नाउन होता है और ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है. तो देन दिस इज नाउन फ्रेज. Which phrase is this? Noun phrase. Okay, and look, both the students are very friendly. This verb है, and this complete both the students किसकी तरह काम कर रही है? पूरा सब्जेक्ट की तरह. ओके, and very friendly, ये भी देखिए, ये सब्जेक्ट है, देन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये नाउन फ्रेज. ओके, एंड वेरी फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली है. किसकी विशेषता बता रहा है? बोथ द स्टूडेंट्स की. किसकी बता रहा है? सब्जेक्ट की. सब्जेक्ट क्या है? नाउन. एंड द वर्ड दैट से समथिंग अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन क्या बोलते हैं उन्हें? एग्जैक्टली, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव. तो ये दोनों जो वर्ड्स है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो किसकी विशेषता बता रहे हैं? नाउन की. तो देन दीज आर एडजेक्टिव फ्रेज. कौन से फ्रेज हो गए? एडजेक्टिव फ्रेज. ओके, एंड लुक, द किड्स आर अफ्रेड ऑफ डार्क. द किड्स, ये सब्जेक्ट है, द किड्स, ये तो कुछ भी नहीं है. एंड दिस इज वर्ब. एंड अफ्रेड ऑफ डार्क. ओके, आर लुकिंग अफ्रेड ऑफ डार्क, ये कौन क्या है? अफ्रेड किसकी विशेषता बता रहा है? किड्स की. डरता कौन है? किड्स. तो देन अफ्रेड ऑफ डार्क क्या है ये? which phrase is this? Afraid of dark is adjective phrase. Okay, okay students, and look, he behaved very well. He
दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब। वेरी वेल किसकी विशेषता बता रहा है? बहुत अच्छा। बिहेव की, ही की तो नहीं है, बहुत अच्छा क्या है? वो बहुत अच्छा नहीं, उसका व्यवहार अच्छा है। ओके, वो बिहेव बहुत अच्छा करता है, वो है या नहीं? इट्स नॉट क्लियर इन दिस सेंटेंस। तो देन ये किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की, वर्ब की, बिहेव की। सो व्हाट इज दिस? एडवर्ब। क्या है बच्चों ये? एडवर्ब फ्रेज। ओके, and look, he will be working very carefully. You know, this is subject and will be working. ये complete sense क्या है? Verb. Will be working. ये क्या है? Group of words, केवल verb का काम कर रहा है. Then this is verb phrase and very carefully. बहुत अच्छे से, क्या है? बहुत अच्छे से, वो बहुत अच्छे से नहीं, काम बहुत अच्छे से कर रहा है। It means यहाँ ये वर्ब फ्रेज भी हो गई और ये एडवर्ब, यानी वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है तो ये एडवर्ब फ्रेज। ओके, ये वर्ब फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज बोथ आर इन वन सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में दोनों हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड लुक, अब हम क्लॉज की तरफ देखेंगे। नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब लाइक दैट। जैसे नाउन क्लॉज, नाउन क्या होता है? जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का काम करता है। ओके, दैट इज वर्किंग इन अ सेंटेंस लाइक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, एंड तो वो नाउन हो गया। एडजेक्टिव क्या हो गया? जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में पूरा जो कुछ बताता है। एंड नाउ एडवर्ब जो वर्ब के बारे में बताता है। तो यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स इन दिस क्लॉज आल्सो। यही चीज आप वहां करेंगे। लाइक ए वेकेशन इज, ये क्या है? आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? केवल क्लॉज। तो a vacation is what I need most. Okay, then what देखिए यहाँ पर what क्या किसका काम कर रहा है? ये तो सब्जेक्ट हो गया and this is what, यहाँ पर ये भी किसका काम कर रहा है? what I, this is working here as a subject. what किसके बारे में बता रहा है? a vacation is what I need most, जिनकी मुझे जरूरत है। जिनकी, किसकी जरूरत है? whose I need most, which I need most, क्या जरूरत है मुझे? किसकी जरूरत है? वेकेशन की। वेकेशन क्या है? सब्जेक्ट। और जब ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है तो क्या हो गया ये? व्हाट आई नीड मोस्ट, क्या है ये? विच इज दैट? व्हाट इज दैट? ए वेकेशन। देखो यहाँ पर एक सेंटेंस रह गया, पहले मैं इसे क्लियर करती हूँ। कैथी थिंक्स दैट शी इज प्रेटी। कैथी ये सब्जेक्ट है, थिंक्स वर्ब है, दैट शी इज प्रेटी। कैथी सोचती है कि वो सुंदर है। ओके, कौन सुंदर है? दैट ही इज प्रेटी। कौन सुंदर है? कैथी। तो ये दैट यहाँ किसके लिए आया है? कि दैट शी के लिए, सी मतलब कैथी के लिए। इट मीन्स ये क्या हो गया? नाउन क्लॉज। ओके, कैथी क्या है? नाउन। तो ये नाउन के बारे में, यानी नाउन के बारे में जो भी कुछ बता रहा है तो ये क्या हो गया? नाउन क्लॉज। ओके, ए वेकेशन इज व्हाट आई नीड मोस्ट। ओके, मुझे किसकी जरूरत है? वेकेशन की। और व्हाट यहाँ किसके लिए आया है? वेकेशन के लिए। वेकेशन के लिए, वेकेशन नहीं, वेकेशन है। किसके लिए आया? वेकेशन के लिए। तो देन दिस इज ऑल्सो नाउन क्लॉज। यहाँ ये सेंटेंस किसके लिए आया है? वेकेशन के लिए। तो ये क्या हो गया? नाउन क्लॉज। एंड लुक नेक्स्ट, I lifted the bag that was heavy. यहाँ that was heavy, that क्या heavy है? बैग। क्या heavy है? बैग। अब ये बैग क्या है? ये ऑब्जेक्ट है ना। What is बैग? क्या है ये? ऑब्जेक्ट। ओके, एंड देन यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में ये हैवी, हैवी क्या है? एडजेक्टिव। ये किसकी विशेषता बता रहा है? अबाउट दैट, किसके बारे में बता रहा है? ये बैग के बारे में। इट मीन्स ये नाउन के बारे में कुछ बता रहा है हमें। ओके, दैट वाज हैवी। क्या हैवी है? बैग। बैग क्या है? नाउन। और जो नाउन के बारे में जब कुछ बताता है कोई, तो देन दिस इज एडजेक्टिव। हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, बिकॉज इट्स these words are saying something about bag. बैग के बारे में बता रही है, ही के बारे में
नहीं बता रहे, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, यानी वर्ब के बारे में भी नहीं बता रहे। दीज आर सेइंग समथिंग अबाउट बैग, बैग के बारे में बता रहा हूँ। बैग क्या है? नाउन। जब नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी वर्ड्स बताए जाते हैं, then the words that say something about noun and pronoun are called adjective. क्या बोलते हैं उन्हें? adjective. तो हमारा ये क्या हो गया बच्चों? adjective clause. okay? he thinks he is growing slowly. he thinks, वो सोचता है, he is growing slowly. growing slowly. okay? अब ये हम देखिए slowly, क्या है ये पूरा growing slowly क्या है ये? he is growing slowly क्या है ये? slowly किसकी विशेषता बता रहा है? growing की। ओके, सो वर्ब के बारे में ये वो कुछ बोल रहा है, वर्ब के बारे में। ये सेंटेंस क्या है? he is growing slowly किसके बारे में? ये वर्ब के बारे में। then this is adverb phrase, adverb clause, जो वर्ब के बारे में बता रहा है। ओके, यानी कैसा पढ़ता है वो? स्लोली, यानी धीमे धीमे। तो देन सेकंड सेंटेंसेस डिपेंड ऑन एडवर्ब, और ये कंप्लीट क्या है? सेंटेंसेस। और ये किसके बारे में बता रहा है? ग्रोइंग के बारे में। तो देन यहां पर आपका क्या है? एडवर्ब क्लॉज। ओके ओके स्टूडेंट्स, so now we have completed the revision of this phrase and clause, okay, with the help of practice set. मैंने आपको 2 बार प्रैक्टिस सेट, यहाँ 2 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराए हैं। फर्स्ट जिसमें आइडेंटिफाई किया है फ्रेज एंड क्लॉज इन वन सेंटेंस, एंड देन डिफरेंटली आई टोल्ड यू अबाउट दैम। और यहाँ मैंने क्लासिफिकेशन भी किया। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आई टोल्ड यू अबाउट हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि आप कौन सा ये फ्रेज है और कौन सा क्लॉज है। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप you got something from this video and from this practice set आपको कुछ तो समझ आया होगा। so I think you have to do practice also at home, then you will get something more about it. okay, thank you.